شہر اولیا میں سردی اور دھند کی شدید لہر اپنے جوبن پر، ہلکی ہوا چلنے سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ درجہ حرارت کم ہو کر 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات حسن ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں شدید دھند اور سردی کا راج۔ سردی کی شدید لہر نے شہریوں کے معاملات زندگی کو شدید متاثر کر دیا۔ دھند کے باعث موٹر وے M4 اور M5 تقریباً 14 گھنٹے تک بند رہیں۔ ملتان شہر کا درجہ حرارت کم ہونے سے سردی کی شدت مزید بڑھنے لگی ہے۔ دھند کی وجہ سے جہاں ایک طرف موٹر وے کو بند کرنا پڑا تو وہیں دوسری جانب دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت اور فلائٹ آپریشن بھی متاثر رہا۔ محکمہ موسمیات نے خبر دی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید کم ہوگا اور دھند کی شدت بھی برقرار رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن ملک، روہی، ملتان۔ سردی کی شدت بڑھنے پر سوئی گیس کی طلب میں اضافہ۔ گیس بحران میں کمپریسر استعمال کرنے والوں کی موج، مگر یہ غیر قانونی گیس کمپریسر دیگر شہریوں کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ ان غیر قانونی گیس کمپریسرز کے باعث قانون ماننے والے صارفین گیس سے محروم ہیں۔ سردی بڑھنے کے ساتھ ہی ملتان کے کئی علاقوں میں سوئی گیس کا پریشر شدید کم ہو گیا۔ غیر قانونی کمپریسرز گیس لائنوں سے پریشر کھینچ لیتے ہیں، جس کے باعث قانون کی پابندی کرنے والے شہری گیس سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ کمپریسر استعمال کرنے والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، جبکہ محکمہ سوئی گیس اس پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے سے کھانا پکانے میں مشکل ہوتی ہے، گیس دستیاب ہو تو پریشر انتہائی کم ہوتا ہے۔ ملتان میں گیس کی صورتحال بالکل پریشر نہیں ہے، اور جو کم و بیش جس ٹائم گیس کا وقت ہوتا ہے آنے کا تو اس وقت کچھ لوگ اپنے گھروں میں کمپریسر وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگلے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں بالکل بھی گیس میسر نہیں ہوتی، ان کے لیے سمجھے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کے باعث انہیں مہنگی LPG خریدنا پڑتی ہے، جبکہ سوئی گیس کے بل پورے وصول کیے جا رہے ہیں اور سہولت آدھی بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ سوئی گیس ٹاسک فورس کی موجودگی کے باوجود شہر بھر میں غیر قانونی کمپریسر بلا خوف و خطر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس گیس سے بالکل بھی محروم ہے، لہٰذا یہ ہے کہ انہیں لکڑیاں یوز کریں۔ لکڑیوں کا ریٹ ہے 1600 روپے من، LPG کا ریٹ ہے 320 روپے۔ سوئی گیس کا نامیسر ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، غریب آدمی کیا کرے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی گیس کمپریسرز کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے، کم گیس پریشر کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ انہیں بنیادی سہولت میسر آ سکے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کی بریک فیل، آٹا، میدا اور سوجی کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا۔ آٹا 7 روپے مہنگا ہو کر 112 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ میدا اور سوجی کی قیمت میں 10 روپے اضافے سے 120 روپے فی کلو ہو گئی۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث شہریوں کا گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ رحیم یار خان میں اشیائے خودنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ آٹا، میدا اور سوجی کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا۔ مہنگائی کی نئی لہر نے بالخصوص متوسط اور غریب طبقے کی مشکلات بڑھا دی۔ آٹا 7 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 112 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ میدا اور سوجی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد دونوں اشیاء 120 روپے فی کلو فروخت کی جانے لگی۔ جی بالکل، آپ نے جس طرح کہا، آٹا جو ہے وہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ 4 سے 5 دن کے اندر جو ہے نا 7 سے 8 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ سوجی میدا بھی ہر گھر میں بنیادی طور پہ استعمال ہوتا ہے، 3-4 دن کے اندر جو ہے اس کے ریٹ بہت انکریز ہوئے ہیں، 10 سے 12 روپے پر کیجی جو ہے وہ ان کے ریٹ بڑھ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی بنیادی اشیاء مہنگی ہونے سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ شہری حلقوں نے اشیائے خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر مداخلت کرے اور آٹے، میدا، سوجی کی قیمتوں میں کمی کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو مہنگائی سے کچھ ریلیف مل سکے۔ دیکھیں، اس سے فرق تو بہت پڑتا ہے، کیونکہ سفید پوش طبقے کا تمام تر جو گزر اوقات ہے وہ انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں بھی 7 سے 8 روپے مہنگی ملنے لگیں تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جو 5 کلو لے رہا ہے وہ 2.5 کلو پہ آ جائے اور جو 2 کلو لے رہا ہے وہ 1 کلو پہ آ جائے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شہریوں کے مطابق اگر کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں تو مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ عوامی ریلیف کے لیے DG فوڈ امجد حفیظ متحرک، آٹے کی بلا تعطل ترسیل جاری۔ جنوبی پنجاب میں 10 لاکھ تھیلے آٹا فراہم، آبادی کے تناسب سے منصفانہ تقسیم۔ رحیم یار خان میں فلور ملز کو سرکاری نرخ پر آٹا فراہم، کوٹا سسٹم کے بغیر فوری اجرا۔ جنوبی پنجاب میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، ذخیرہ اور سپلائی مکمل کنٹرول۔ آئندہ دنوں کے لیے گندم کا کوٹا جاری۔
आटे की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी की यकीन दहानी। महकमा खुराक का कहना था कि अवाम को महंगाई से रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं कि अवामी रिलीफ के लिए डीजी फूड अमजद हफीज मुतारिक आटे की बिला तातुल तरसील जारी। जनूबी पंजाब में 10 लाख थैले आटा फराहम, आबादी के तनासुब से मुनसिफाना तकसीम। रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स को सरकारी निर्ख पर आटा फराहम, कोटा सिस्टम के बगैर फौरी इजरा। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, सरकारी रेट लिस्ट को मसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। सब्जियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आलू सरकारी निर्ख के बरक्स कई गुना महंगा फरोख्त किया जाने लगा। दीगर सब्जियां और फल भी आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। मुल्तान में अशे-खुर्नोश की खरीदारी गरीब की जेब पर भारी पड़ने लगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक आलू की सरकारी कीमत 25 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में यही आलू 60 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू की कीमत में इजाफे ने सबसे ज्यादा असर आम शहरी पर डाला है। आलू के साथ दीगर सब्जियां भी महंगी फरोख्त हो रही है। मार्केट में प्याज 70, हरी मिर्च 80 और टमाटर 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि सरकारी निर्खों में प्याज 50, सब्जी मिर्च 64 और टमाटर 46 रुपए फी किलो मुकर्रर है। इसी तरह 60 से 80, गाजर 40 और चुकंदर 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में साग 56, गाजर 32 और चुकंदर 64 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 350, लहसुन 400 और सुहाजना 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खों में अदरक 280, लहसुन 325 और सुहाजना 240 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फलों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर है। सरकारी निर्खों में अमरूद 100, अनार 535 और पपीता 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद देसी 150, अनार 600 और पपीता 350 रुपए फी किलो फरोख्त। इसी तरह मार्केट में माल्टे 140 और फ्रूटर 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 100 से 120 रुपए फी दर्जन है। सरकारी निर्खनामे में सेब 172 और सेब काला कल्लू 350 रुपए फी किलो मुकर्रर है। तहम मार्केट में सेब मुख्तलिफ अक़साम के मुताबिक 300 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। बहावलपुर में 150 साल से कायम प्रिंटिंग प्रेस खत्म करने का फैसला। 150 साल पुरानी और मौजूदा मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा। कदीम इमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के लिए सिफारिशात तलब। 65 से जायद मुलाजिमीन की नौकरियां भी खत्म होने का इम्कान। हुकूमत पंजाब की बहावलपुर में 150 साल से कायम प्रिंटिंग प्रेस को खत्म करने की तैयारियां। 150 साल पुरानी और मौजूदा मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा। महकमा सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने कदीम इमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के लिए सिफारिशात तलब कर ली। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले 65 से ज्यादा मुलाजमीन की नौकरियां भी खत्म होने का इम्कान। मुलाजमीन प्रिंटिंग प्रेस रापा एहतजाज, कदीम प्रिंटिंग प्रेस को खत्म न करने का मुतालबा। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त से ये प्रिंटिंग प्रेस कंटिन्यूसली चलती आ रही है और 350 से ज्यादा मुलाजमीन यहाँ पर पहले काम करते थे और 3 शिफ्टों में प्रेस चला करता था। गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से बाइंड अप होते होते अब एक शिफ्ट रह गई है और चंद मुलाजमीन रह गए। अब उनका भी इस्तेसाल किया जा रहा है और इस प्रेस को बंद किया जा रहा है, जबकि मसाइल कुछ लाहौर प्रिंटिंग प्रेस के थे, उनको शिफ्ट कर देते कहीं और हमें यहाँ पर कायम दायम रखा जाता। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जारी होने वाली मीटिंग रिपोर्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कमिश्नर बहावलपुर पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। कमेटी बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस के असासाजात और अमारत के मुतबादिल इस्तेमाल के फैसले के साथ सूरत हाल का जायजा लेकर सिफारिशात भी पेश करेगी। मुलाजमीन का कहना था कि बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस 1867 में नवाब ऑफ बहावलपुर की तरफ से कायम की गई थी और अमारत भी आजादाना तौर पर वक्फ की गई थी। अमारत में सदियों पुरानी प्रिंटिंग मशीनरी को नीलाम करना भी गलत इकदाम है। मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसी इदारे को कायम दायम रखे और जो है ना सही तरीके से अपना फैसला वापस ले। मुलाजमीन का कहना था कि लाहौर प्रिंटिंग प्रेस की मुंतकिली के दौरान बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस को भी खत्म किया जा रहा है। लाहौर के मुलाजमीन को बहावलपुर मुंतकिल करके कदीमी प्रेस को बहाल रखा जाए। कैमरामैन शासिकलैन हैदर के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान पुलिस का इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 दिनों के दौरान 20 ए कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। एएसपी का कहना था कि कैंट सर्कल के 3 थानों में 100 से जायद ए कैटेगरी के मुलजिमान थे। मजीद जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में इश्तिहारियों के हवाले से बात करें तो मुल्तान में मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो जारी है। इसी हवाले से कैंट सर्कल पुलिस ने जो है वो कितने इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि 3 बड़े थाने जो हैं कैंट सर्कल की हदूद में आते हैं, और कितने इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं गुज़श्ता 10 दिनों में। हमारे साथ बात करने के लिए एएसपी कैंट हलार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से कितनी टीमें जो है वो तश्कील दी हुई हैं और कितने इश्तिहारी जो है गिरफ्तार कर लिए हैं? इश्तिहारियों की गिरफ्तारी जो होती है वो हमारी
फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पुलिस की। उसमें टीमें थाने पे भी बनी होती हैं, हर थाने पे एक पीओ टीम बनाते हैं हम, जो इश्तिहारियों को पकड़ती है। इसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट पे भी आपको पता होगा एक प्रॉपर इश्तिहारियों की टीम होती है जो काम ही पूरे डिस्ट्रिक्ट के इश्तिहारियों पे करती है। इसमें हम कैटेगराइज करते हैं ए कैटेगरी के इश्तिहारी और बी कैटेगरी के इश्तिहारी, और हमारा फोकस होता है कि हम ए कैटेगरी के इश्तिहारियों को सबसे पहले पकड़ें, और बी कैटेगरी के इश्तिहारियों पे भी हमारा थानों में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा होता है। अभी तक पिछले 10 दिनों में सिर्फ जिन 3 थानों का आपने जिक्र किया कैंट सर्किल के, उन 3 थानों में हम 20 इश्तिहारी अभी तक पकड़ चुके हैं पिछले 10 दिनों में। अच्छा सर, ए कैटेगरी के कितने थे और बी कैटेगरी के कितने हैं? बी कैटेगरी के तो ऑलमोस्ट कैंट सर्किल के अराउंड 1000 हैं, और बी कैटेगरी में ये ऑफेंसेस आ जाते हैं, माइनर ऑफेंसेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल ऑफेंसेस आ जाते हैं, उसके इश्तिहारी मोस्टली ज़्यादा ही होते हैं, तो उसके उनके पीछे तो हम भागते रहते हैं। इसके अलावा ए कैटेगरी के जो इश्तिहारी होते हैं वो हसास नौयत के होते हैं, उसमें 302 भी हो सकता है, 394, 395 के इश्तिहारी भी होते हैं, उन पे हम खातिर ख्वाह काम करते हैं। मतलब इस हद तक हमने काम किया है उसमें ए कैटेगरी के इश्तिहारियों में कि अब कैंट थाने के सिर्फ ओवरऑल 2 रह गए हैं ए कैटेगरी के आज तक जो इश्तिहारी नहीं पकड़े गए। इसी तरह चेलियत के 4 हैं, और जलीलाबाद थाना जो है हमारा, उसमें हमारा एक भी ए कैटेगरी का इश्तिहारी ऐसा नहीं है जो हमने गिरफ्तार ना किया। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 10 दिनों में जो है वो तकरीबन 20 से ज़ायद जो ए कैटेगरी के इश्तिहारी हैं उनको गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है, जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ मजीद जो है इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के हवाले से छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, टीमें जो हैं वो भी तश्कील दे दी हैं। जल्द जो है हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का कमसिन बच्चियों की बरामदगी का हुक्म, अदालत की पुलिस को 2 हफ्ते में लड़कियां बरामद करके पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार शादूबाई की 7 और 12 साला बेटियां मुबैना तौर पर लापता हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि बच्चियों को काम के बहाने रखा गया, बाद में लाहौर रिश्तेदारों के यहां भिजवा दिया, वापसी से इनकारी है, बच्चियों की जान को खतरा है, आला हुकाम लड़कियों को वालिदैन के हवाले करें। जहानिया में अवामी सहूलत के लिए शुरू किया गया करोड़ों रुपए लागत का अंडर बाईपास मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। तामीराती काम अचानक बंद होने से शहर की मरकजी गुजरगाह 12 वाले फाटक के करीब गहरी खाई बनाकर छोड़ दी गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात और मुमकिन जानी हादसात का खदशा लाहिक हो गया। जहानिया में ट्रैफिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए शुरू किया गया करोड़ों रुपए लागत का अंडरपास मंसूबा ताहाल नामुकम्मल पड़ा है और तमीराती काम अचानक बंद होने से शहर की मरकजी गुजरगाह 12 वाले फाटक के करीब इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मंसूबे के तहत बनाई गई गहरी खाई को बगैर किसी हिफाजी इंतजाम के खुला छोड़ दिया गया है, जो दिन और रात के औकात में शहरों के लिए खतरा बनी हुई है। ये खाई किसी वक्त भी बड़े जानी हादसे का सबब बन सकती है। शहरियों के मुताबिक अंडरपास की अदम तकमील के बायस रेलवे फाटक बार बार बंद रहने से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। जी बिल्कुल, तकरीबन कोई अरसा 2 साल से ये जो अंडरपास का मंसूबा है ये खटाई में पड़ा हुआ है, ना तो इसको मुकम्मल किया जा रहा है ना और इसके कोई काम किया जाता है। पिछले दिनों ये काम शुरू हुआ, ये बड़े बड़े गड्ढे 10-10, 20-20 फुट डाल दिए गए। एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू गाड़ियां भी ट्रैफिक में फंसने पर मजबूर हैं, जिससे कीमती जानों को खतरात लाहक हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक खाई के इतराफ न हिफाजती बाड़ लगाई गई है और न ही इंतबाही साइन बोर्ड अवेजा किया गया है, ताकि अवाम को जो फाटक बंद होने की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना हो, तालिब इल्म वक्त पर स्कूल पहुंचे और मरीजों को बर वक्त जो है ना जी तिब्बी इमदाद देने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। अवामी हलकों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है, जब तक मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक आर्जी हिफाजती इंतजामात, रोशनी का मुअस्सर बंदोबस्त किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन टीम की हमरा जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुल्तान इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़कों पर मरम्मती काम से शहरी सांस के मर्ज में मुब्तला होने लगे। शहरी कहते हैं खराब रोड पर सफर करना किसी इम्तहान से कम नहीं है। आपको बता रहे हैं मुल्तान इंतजामिया की नजरों से ओझल सड़कें शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी। मजीद जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पुल बरारा के करीब जो रोड है उधर मौजूद हूँ और ये रोड काफ़ी अरसे से तारा है मगर इसका काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ पे से जो गुजरने वाले लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, साथ में यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? जी हाँ बिल्कुल, ये रोड काफ़ी अरसे से नहीं बना, 1 साल हो गया है तकरीबन। काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पर एक्सीडेंट का हादसात वगैरह यहाँ हो रहे हैं रोज़मर्रा। यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, एम्बुलेंस मतलब इमरजेंसी जो होती है वो वहाँ पर रुक जाती है। इतने गड्ढे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, यहाँ पर पानी रुक जाता है यहाँ पर।
तो सारे मच्छर, डेंगू, मलेरिया बीमारियों का ये हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, रात के औकात में तो क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही है तो एक्सीडेंट होते हैं, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है, कोई मसला हल करने की कोशिश की है? ये तो बहुत बार कंप्लेन हो चुकी है और हमारे ये जो काम में भी तंगी आ रही है क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है, पत्थर हैं, तो इधर जो है ना वो गाड़ियाँ नहीं आती। रात के टाइम इधर वारदातें वगैरह बहुत होती हैं क्योंकि यहाँ पे कम आबादी हो, मतलब कि लाइटें वगैरह कम हैं, तो इस वजह से हादसा बहुत सारे होते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, काम में बहुत तंगी आती है। तो ये वो तो पत्थर मट्टी वगैरह डाल के भूल गए हैं रोड बनाना भी, तो उन्होंने रोड भी नहीं बनाया। 2 साल होने वाले हैं ऐसे ही पड़ा है रोड। जी मेरे कैमरामैन भी अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सकें, तो ये बनना तो शुरू हुआ था, इसको बनाना जो है मुकम्मल करना भूल गए हैं और यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो रात के औकात में एक्सीडेंट जो है काफी ज्यादा हो जाते हैं और फोग भी है। अब तो आसपास जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि पानी इकट्ठा होना, एक्सीडेंट होना और उनको जो धूल मिट्टी से मसले पैदा हो रहे हैं वो भी अलग है। 2 साल हो गए हैं ये रोड जो है इंतजामिया ने शुरू किया था बनाना, पर इसको मुकम्मल करना भूल गई है। इस वजह से शहरी जो है यहाँ के काफी ज्यादा परेशान है, ट्रैफिक जाम होना भी यहाँ पे मामूल बन चुका है और रात के औकात में जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना होता है, ना सिर्फ जो ट्रैफिक गुजर रही है उन लोगों को बल्कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको भी खासा मुश्किल का सामना है और ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इंतजामिया जो है इस रोड का काम मुकम्मल करवाए ताकि ये आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा सिफ आपका। जनूबी पंजाब में पैराफोर्स इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्तियों का अमल जारी। मुल्तान में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 2 नशिस्तों पर 1107 मर्द, दीगर 2 के लिए 361 खवातीन दौड़ में शरीक हुई। उधर जिला रहीम यार खान भर से 1257 उम्मीदवारान लंबी दौड़ में शरीक हुए। जनूबी पंजाब में पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्तियों का अमल जारी। मुल्तान में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 2 नशिस्तों पर 1107 मर्द, दीगर 2 के लिए 361 खवातीन दौड़ में शरीक हुई। 1 मील दौड़ मुकम्मल करने के लिए लड़कों को 7 मिनट, लड़कियों को 14 मिनट दिए। सबा इकराम ने तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए फंक्शनिंग लाइन अबूर की। बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन पहुंच गई हैं जी। तो अब पहले इसके अलावा भी कभी रनिंग की है? नहीं फर्स्ट टाइम की है, कोई ट्राई नहीं की थी। तीनों गवर्नमेंट जॉब वाले हों और आप रह रहे हो और खानदान में पढ़ाई सबसे ज्यादा और आप रह रहे हो, तो यही मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है। रहीम यार खान में पैरा फोर्स इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्तियों के लिए 1257 उम्मीदवारान लंबी दौड़ में शरीक हुए। 1 मील लंबी दौड़ मुकम्मल करने के लिए मर्द उम्मीदवारान के लिए 9 मिनट की शर्त, जबकि खवातीन उम्मीदवारान के लिए 1 मील दौड़ 12 मिनट में मुकम्मल करना लाजमी करार दिया गया। मुल्तान पुलिस का क्राइम कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अमली मजीद मौसर बनाने का फैसला। SSP ऑपरेशन हैदर अली की CPO कॉम्प्लेक्स में डिवीजन अफसरान के साथ मीटिंग। SP गिलगित सैफुल्ला, SP कैंट कायनात अजहर, SP सिटी खदीजा उमर की शिरकत। जिला के SDPOs कैंट को गिलगित डिवीजन के SHOs की भी शिरकत। SSP ने क्राइम और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। कहा अफसरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए बेहतर हिकमत अमली से काम करें। मुनशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां तेज करें। निश्तर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मुल्तान की मुमकिना निजकारी पर सैयद अली हैदर गिलानी ने नोटिस जमा करवा दिया। अली हैदर गिलानी ने नोटिस बराए तहरीक इल्तवा का जमा करवाया है। कहा निश्तर मेडिकल कॉलेज क़याम के पाकिस्तान के बाद बनने वाला पहला मेडिकल कॉलेज है। निश्तर मेडिकल कॉलेज को मुबैना तौर पर प्राइवेटाइज करने की मनसूबाबंदी जारी है। निश्तर मेडिकल कॉलेज तकरीबन 125 एकड़ पर मुहित एक वसी और अरीज तालीमी इदारा है। यूसुफ रजा गिलानी के वालिद मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी ने अपनी ख्वाहिशों से इसको कायम करवाया। निजकारी से मुतवस्सित तबका के तलबा के लिए तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। निजकारी से इलाज मुआलजा भी महंगा होगा। आपको बता रहे हैं निश्तर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मुल्तान की मुमकिना निजकारी पर सैयद अली हैदर गिलानी ने नोटिस जमा करवा दिया। DG खान इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कारपोरेशन की तरक्याती स्कीमों बारे इजलास। DC उस्मान खालिद, ACG सैफुल्ला जावेद और मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक थे। इजलास में कमिश्नर को पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ग्रीन बेल्ट, टफ टाइल्स और शहरी खूबसूरती की दीगर स्कीमों का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर को सब्जी और फल फरोशों के लिए मॉडल कार्ट्स मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। इशफाक अहमद चौधरी की तरक्याती स्कीमों में मयार को शिफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत।
कमिश्नर ने मंसूबों की बरवक्त तकमील और मुसलसल मॉनिटरिंग पर जोर दिया। कमिश्नर की इस शहर को साफ और मॉडल शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का ऊंच शरीफ के ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुतालिका अफसरान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे की पेशरफ्त और तामीराती मयार पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद हसन रजा का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नौजवानों के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का अहम मरकज साबित होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में खेलों के फरोग के लिए संग-ए-मील होगा। डेप्यूटी कमिश्नर ने तमाम सहूलियात जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। डीसी मुल्तान मोहम्मद नोमान सिद्दीक की ज़ेरे सदारत ज़िले महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। गुड गवर्नेंस, अवामी फलाही मंसूबों और तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डेवलपमेंट, वासा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का जामे जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक की गुड गवर्नेंस मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा, जिला के तमाम वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स को मुकम्मल फाल किया जा रहा है। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी है।